नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में कि ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है, वह कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी बेसिक टर्म का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ ओरेकल डेटाबेस। तो ओरेकल डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने और डेटा को रिट्रीवल करने के यूज़ में आता है। ओके, सो इसमें मेनली टू पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, डेटाबेस एंड एटलीस्ट वन इंस्टेंस। तो जो ओरेकल डेटाबेस है वो बेसिकली दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक तो डेटाबेस होता है और एक इंस्टेंस होता है। तो हम आने वाले स्लाइड्स में इन्हीं दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल see about the instances. So in this slide you can see that here is a one instance and here you can see a two instance. So any database where is only one instance, so these are called the single instance. And if any database have more than one instance, these are called the multi-instance database or a RAG database. तो इस वीडियो में हम मेनली सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वन डेटाबेस विद वन इंस्टेंस। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डेटाबेस एंड इंस्टेंस होते क्या हैं। So as you can see in the slide, instance consist of memory structure and background processes, and these all are part of memory. So एक जो इंस्टेंस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो उसमें मेमोरी स्ट्रक्चर्स होंगे और बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे। और जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं ये मेमोरी का पार्ट है। And what is database? Database consists of files. Files like database file, control file, redo log file, and so on. And these all are part of the storage. So we will discuss more about all these terms. What are memory structure? So memory structure basically divided into two parts. One is system global area and another one is process global area. So system global area or SGA is called a shared memory, and process global area or PGA called a private memory, because SGA is shared between the processes and private memory or process global area is not shared. It is dedicated to the particular process. So here you can see that if I take example, so here are many server processes are there. So I have just take a server process 1, server process 2 and server process 3, and here you can see a many background processes are running. So all server processes and background processes are use the system global area as a shared memory. So I have make here a big rectangle because these memory are shared between all the processes. And in the small rectangle you can see a PGA. So every process, maybe a server process or background process, have a dedicated PGA, a private memory also called a process global area. So in short, every server process or background process have the shared memory as a system global area as well as private memory as a individual memory. Type of process. So we now we understand about the process. So mainly there are two type of process. One is client process and another is Oracle process. So the client process is mainly when we run the application or maybe any tool like SQL plus. So the process which we run at the client end we call that client process. And Oracle process क्या है? Oracle process है
कि जो कि हम Oracle डेटाबेस सर्वर में जो प्रोसेस होती है वो Oracle प्रोसेस के अंतर्गत आती है. तो यू कैन सी इन द डायग्राम आई हैव मेक टू पिक्चर्स. वन इज for the client process, like we are running any app or running any query through the SQL plus, and these requests will go to the database server. So that call Oracle process. So we will go deep into the Oracle process. So mainly Oracle process divided into two parts. One is server process and another is the background process. So we will see what is the server process. So server process is that when we request, when client request to the server for any particular query, server process start. So I have just apply one picture here. Like if you are go to the restaurant and if you order something, so server will come with your order. Server or waiter will come with your order. So whatever you are requesting to the server, it will come to you. So as soon as you establish the connection, you request to get data from the server process start. So it's work based on the client request, and as soon as you close the connection, the server process ends or disconnect. So it start as soon as you create the connection and it end as soon as you disconnect the connection. And what is the background process? So you like in previously we have taken the restaurant example. So same way I have taken the another example from the restaurant only. So whatever you ask for order, जो भी आपने order दिया था, who made that order, वो order बनाया किसने था? So there are many people behind of this. Same way, if you are order, if you are requesting anything to the server process से आपको रिजल्ट मिला, लेकिन इसके पीछे कई सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस काम करती हैं. ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड प्रोसेस का अलग अलग काम है, बट ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं. जस्ट लाइक आपने अगर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपको सर्वर पिज़्ज़ा लेके आ गया, बट वो पिज़्ज़ा कई लोगों ने उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है उसको क्रिएट करने में, बनाने में. तो सेम वे इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग एनीथिंग टू द सर्वर, कोई क्वेरी आपने रीच किया है, उसका रिजल्ट आया, लेकिन उसमें कई सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस ने काम किया है. एंड एवरी बैकग्राउंड प्रोसेस का सेपरेट टास्क है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन है. सो वी हैव अंडरस्टूड द इंस्टेंस. नाउ वी लिटिल बिट गो इनटू द डेटाबेस. सो बेसिकली जो Oracle डेटाबेस है वो दो तरीके से स्टोरेज होता है. सो वन इज फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज द लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर. सो एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसको फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसमें हम OS लेवल पे किसी फाइल को देखा जा सके. लाइक in the Oracle database, data file, control file and read log file, these store as a physical level, means we can see these file in the storage level. So these are called the physical storage structure. So we will understand little bit about these files. So data file क्या होती है? डेटा फाइल मेनली रियल डेटा होता है. जो भी हम Oracle डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं, टेबल सेव करते हैं, जो भी उसमें डेटा स्टोर होता है वो जाके डेटा फाइल में स्टोर होता है. व्हाट आर द कंट्रोल फाइल? कंट्रोल फाइल कंटेन द मेटा डेटा, मीन्स इसमें जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, ठीक है, और डेटाबेस से रिलेटेड लोकेशन, फाइल की लोकेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो कंट्रोल फाइल के अंदर होती हैं. रीड लॉग फाइल क्या होता है? रीड लॉग फाइल बेसिकली जो भी हम उसमें चेंजेस करते हैं, यू कैन सी द इवेंट ऑफ चेंजेस, जो भी हम डेटा में चेंजेस करते हैं उसकी एंट्री जाके रीड लॉग फाइल में होती है. Now we will understand about the logical storage structure. So basically logical storage structures are combination of the logical storage structure save as a data blocks. It is the smallest unit.
तो जो भी हम डेटा सेव कर रहे हैं डेटा फाइल में, वो लॉजिकली कैसे हो रहा है, डेटा ब्लॉक्स में, और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। डेटा ब्लॉक्स कैन बी ऑफ 2 KB, 4 KB, 8 KB, जो भी हमने जैसे डिफाइन करके रखा है उस साइज में डेटा ब्लॉक्स सेव होते हैं। मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स जो हैं वो बनाते हैं एक्सटेंट। जब कई सारे डेटा ब्लॉक्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग 2 KB, तो जब 2 KB ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट 2 KB आएगा, तो ऐसे करके एक्सटेंट बनता है। तो अ सेट ऑफ द लॉजिकल डेटा ब्लॉक्स मेड अ एक्सटेंट। और एक एक्सटेंट जब ख़त्म होने पे दूसरा एक्सटेंट शुरू हो गया किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए या टेबल स्पेस में बनाने के लिए, तो दीज मेड अ सेगमेंट। सो यू कैन से द सेट ऑफ द एक्सटेंट इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब एक टेबल स्पेस है, ठीक है, उस टेबल स्पेस में एक से ज़्यादा सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सेगमेंट कॉल अ table space. So we will understand in this picture little bit more about this. So here you can see the smallest unit is the data blocks. So here you can understand that 2 KB, 2 KB, there are multiple data blocks. So ये कई सारे डेटा ब्लॉक्स बना रहे हैं एक्सटेंट को, ये एक्सटेंट बन गया, ठीक है। अभी ये जो एक्सटेंट है, अब यहाँ पे एक डेटा फाइल सेव हो रही है, इसका एक्सटेंट 24 KB है। एक डेटा फाइल यहाँ सेव हो रही है, इसका एक्सटेंट 72 KB है। अभी यहाँ पे ये जो मल्टीपल एक्सटेंट क्रिएट हो रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं सेगमेंट को। सो इन दिस वे लॉजिकली स्टोरेज होता है डेटाबेस में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेटाबेस एंड इंस्टेंस ऑल टुगेदर। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी क्लाइंट प्रोसेस का रिक्वेस्ट होता है, प्रोसेस करता है सपोज SQL प्लस के थ्रू, तो बेसिकली इट गोज़ टू द इंस्टेंस। तो जो इंस्टेंस, जब भी हम क्लाइंट प्रोसेस डेटाबेस से कनेक्ट होता है तो वो डेटाबेस इंस्टेंस कनेक्ट होता है। तो यू कैन सी द बिग रेक्टेंगल हेयर। सो डेटाबेस इंस्टेंस में मेनली 2 पार्ट्स होंगे, वन वुड बी द सर्वर प्रोसेस एंड अनदर वुड बी द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो जब भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब भी क्लाइंट कनेक्ट होता है इंस्टेंस के साथ, तो सर्वर प्रोसेस को स्टार्ट होता है। सर्वर प्रोसेस यूज करेगी मेनली अपना PGA को और SGA को, प्राइवेट प्रोसेस ग्लोबल एरिया को भी यूज़ करेगी और सिस्टम ग्लोबल एरिया को भी यूज़ करेगी। उसके बाद जो क्वेरी आई है वो क्वेरी बैकग्राउंड प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, और ये पूरा ग्रुप जो है डेटाबेस इंस्टेंस का, ये कनेक्ट होगा डेटाबेस से और आपका रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। सो बेसिकली दीज द डायग्राम हाउ इट वर्क्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे एंड वी विल गो डीपली अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।